All across the world, life as an HIV-positive person has never been easy. In India too, widespread myths and unfounded fears gave rise to a traumatic environment of hopelessness, stigma and discrimination for people living with HIV. As a result, most people at risk were petrified of even getting themselves tested. And those who turned out to be HIV positive thought it was the end of life. Fear of disclosure also meant they were too scared to avail the treatment that could help make them better, or to initiate safe practices with the people they loved. And then, slowly, things began to change. Today, more and more people across the country are mustering up courage to openly accept their HIV-positive status, to their families and society. They take their ART medicines regularly, perform their household and professional duties with far greater dedication and enthusiasm than ever before. And most important of all, use their HIV-positive status to reach out to other PL-HIV and reassure them that they too can still lead happy, healthy, productive lives, even with HIV. As you watch this film, we hope that you too will be drawn in as a proud member of this effort. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶುಲೀಲಾ ಅಂತ. ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. मेरा नाम मोहन सिंह रावत है। मैं HIV पॉजिटिव हूँ और आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। নমস্কার, আমার নাম দেবব্রত দাস। আমি 2003 साल থেকে আমি নিজে একজন HIV पॉजिटिव। मैं HIV पॉजिटिव हूँ। मैं अपना नाम तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं अपना कहानी जरूर बताऊँगी। HIV के बारे में जब पता चलता है तो कोई भी व्यक्ति हो, मैंने आज तक कहीं सुना नहीं है कि जो रोया ना हो। मुझे जैसे ही पता पड़ा तो मेरे एकदम पहाड़ सा टूट गया मेरे ऊपर, और जैसे ज़िंदगी जीने के लिए चारों रास्ते मेरे बंद हो गए। আমি যখনই প্রথমে জানতে পারলাম যে HIV পজিটিভ আছে, তখন আমাকে খুবই ভালো আনন্দ হয়েছি। কেন আনন্দ হয়েছি কি আমি জানতাম না, আমি এইটাই জানতাম, সব ছোটোবেলা থেকে জানি कि पॉजिटिव भालो नेगेटिव खराब। 1.5 साल तक उनके साथ मैं रहा, लेकिन ये बोल के रहा कि मैं कोई एक संस्था है, वहाँ पर HIV पॉजिटिव लोग काम करते हैं और उनको मैं सेवा दे रहा हूँ। इस तरह मैं रोज़ उनका थोड़ा बहुत काउंसलिंग घर में किया करता था। उनके दिमाग में ये सब उतरने के बाद, घर पे आने के बाद मैंने सिर्फ हमारी जो बड़ी भाभी थी उनको एक सवाल किया था, मैं इनके साथ रहता हूँ, इनके समझो अगर मुझे HIV हो जाता है तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि साथ में रहने से तो कुछ होता नहीं है, तो फिर आपको अगर हो जाएगा तो वांधा नहीं है, हम तो रखेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि भाई मुझे भी है, इसको भी है, बच्ची को भी है। इस तरह से मैंने परिवार वालों को बताया। ಹಂಗೇನು ಯಾರು ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ರಿ ಸರ್. ಹಿಂಗೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾನು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಅನಾಥರಾಗ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನೇ ಧೈರ್ಯ ತಗೋಬೇಕು. Not a single woman was coming out to say that I'm HIV positive. But after my husband passed away and I don't know where to start. I don't know where to go. I cannot even tell my parents to, that I'm like this. So I have to go to the network and start contacting with them, started meeting with them. After that only I came to accept that I'm HIV positive. फिर मेरे को पता चला कि भाई मेरे जैसी बहनें और भी है जो HIV के साथ जी रही है, तो मेरे को भी एक हौसला मिला कि भाई अपन भी सही रह सकते हैं, जी सकते हैं।
ऐसा ऐसा नेटवर्क है दीमापुर में, DLN है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारा लोग है, आपको देख के दिल खुश हो जाएगा, आपको भी जीने का चाह उठ जाएगा। ऐसा मतलब बहुत बोलना पड़ता है उनको, फुसलाना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी है उसको, और उससे ज़्यादा हमको भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक ही है ना, किसी को मरते हुए तो नहीं देख सकता है। सिर्फ हम पैसे के लिए तो काम नहीं करता है, इंसानियत भी रखना चाहिए दिल में, इसलिए हम ज़्यादा जोर डाल देता है। मैं तो बिल्कुल एक घरेलू थी, मुझे किसी चीज़ का मालूम नहीं कि कैसे काम किया जाता है, क्या होता है, कैसे लोगों से मिला जाता है, कैसे बातचीत की जाती है। ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ತುಂಬ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹಿಂಗಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಇಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಯ ಇಲ್ಲ. HIV का होतो, किती कारणामुळे होतो, त्याच्यापासून त्याची औषधं काय, परत ड्रग रेजिस्टंटपर्यंत प्रत्येक गोष्ट, कंडोम कसा यूज करायचा, समोरच्याला कसं सांगायचं, कारण गावासारख्या ठिकाणी कंडोम बोलणंसुद्धा चुकीची गोष्ट आहे. तिकडे तर अजून पण कॅप, टोपी म्हणजे असले कसले विचित्र म्हणजे नावं घेऊन बोलतात. कंडोम बोलायला सुद्धा घाबरतात लोक. जे रजिस्टर आहेत किंवा जे संस्थेचं काम आहे मेन म्हणजे त्याच्यातनं खूप चांगल्या पद्धतीने आम्हाला समजलं करतात. पहले तो बहुत डर लगता रहा आदमी के सामने खड़ा, उनसे भी तो खड़ा हुआ बात करने के लिए खड़ा तो हो गया, तो मेरा पूरा पैर हाथ कांपने, वो औरत था लेकिन पैर हाथ कांपने लगे, रोने का जैसा हो गया पूरा तो हमको डर लग गया. फिर भी काँप के भी हिम्मत किया बोलने के लिए. फिर हम बोला नेक्स्ट टाइम तो इससे भी अच्छा से बोलेगा, कोई बात नहीं. ऐसे करते करते दिल भी बड़ा हो गया और बोलने का भी हिम्मत आ गया. Nagaland is a very beautiful state, but to do the outreach activities, it is very difficult because of the terrain. If I don't get a bus, then I have to walk for a miles. Once I enter to the village, I meet peer treatment educator. Basically, the PTEs are all based in the village, and the PTEs are all volunteers. We try to also cover like the pill count once we meet the PLHS, whether they are adhering to the treatment or not. We also refer them also to ART center for monitoring the CD4 count and also for further treatment for health investigation. Though the journey is very hectic, my visit to another community always makes a difference. ह्या कामाचं असं आहे की कुठला टायमिंग ह्या कामाला नाही आहे, कारण की त्यांनी जी कामाची पद्धत सांगितलेली ते अशा टायमिंगमध्ये तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचायची की लोक तुम्हाला भेटतील. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ART ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಿನ ಮಹತ್ವ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನವೊಲಿಸೋದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿನೂ ತೊಗೋಬೋದ್ರಿ ಸರ. ಅದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಖುಷಿನೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್. ನಾ ಇವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಹೊಳೆ ಕೊಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕತ್ರ ಆರಾಮಾದರು ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ತಂದೈತೆ. एक हम गए थे ब्यावर के पास में है गांव, उधर गए. पहले हमने फ़ोन किया उनको कि भाई साहब आपका ये नाम है और हम आपसे मिलना चाहते हैं, और अपने बारे में भी बताया कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ. तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए. हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो चौराहे पे, घर पे भी नहीं, चौराहे पे डंडा लेकर के बैठा. HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ರೀ ಸರ್, ಆದರೆ CD4 ಚಲೋದಿಂದ ಇನ್ನು ನಾನ್ ART ಇದ್ದೀನಿ.
ಈಗ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ CD4 ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತ್ರಿ, ನಾ ಆನ್ ART ಇದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಳೋಲ್ಲ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾ CD4 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋವಲ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಂಥ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ನೋಡಿರಿ ನಾವು HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ನೀವು कलीरी. पेअर काउन्सिलिंग याच्या माध्यमातून मी लोकांना सांगू शकतोय की अरे बाबा रे तुला काय होणार नाही आहे, मी 17 वर्ष मेलेलो नाही आहे, तू काय मरणार आहे बाबा. मैं मेरी खुद की ART की डब्बी बताता हूँ कि देख लो मैं भी ये डब्बी है, मैं भी ART लेता हूँ, तो फिर उनको विश्वास है, वो कहते हैं लगते नहीं हो आप HIV पॉजिटिव. મારા બાબાને તો કંઈ એવું એને નથી કે આમ HIV છે તો મરી જવાનું, એને પણ એવું નથી. મારા બાબા કહે કંઈ નહીં, એક દિવસ તો મરવાનું જ છે ને મમ્મી, અત્યારે નહીં તો પછી, એટલે એવું કંઈ વિચારવાનું નહીં મમ્મી, એવું કહે છે. મારા બાબાનામાં બહુ હિંમત છે. बेटा तो कहता है मेरी मम्मी के HIV पॉजिटिव है, मारा हो जाएगा, लेकिन मेरी बेटी तो कहती है मेरी मम्मी के HIV पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ. HIV पॉजिटिव होता है तो 4 कारण ऐसे होता है, मेरी बेटी भी बताती है, लेकिन मेरी मम्मी के साथ सोने से, साथ खाना खाने से, साथ बैठने उठने से मेरी मम्मी से मेरे HIV नहीं हो सकता. जो मेरे ससुराल वाले मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे, आज की स्थिति यह है कि मैं अभी दिवाली पे अभी मैं गई थी तो मुझे मेरे सासू जी ने कहा कि आचू ये तुम ये चावल बना दो और चावल बना करके तुम्हें देखना है कि सबको खिलाना है. उनका ठीक है. माझे नातेवाईक तर मला खूप प्रेम देतात, पण त्याच्यापेक्षा जास्त ह्यांच्यामध्ये मी जास्त रमून असते, कारण हे माझं खूप जवळचं मला वाटतं असं. मुझे प्यार नहीं तुझसे है बा, मुझे दिल को तेरा देबा, मुझे प्यार नहीं तुझसे है बा, मुझे दिल को तेरा देबा. ऐका दाजीबा, ऐका दाजीबा, ऐका दाजीबा, ऐका दाजीबा. हमारी तरह बाहर आइए, हमारी तरह आराम से जिए, छुपे छुपे आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है. हम भी बहुत आंसू बहाए, 3 साल से आंसू बहाए, 3 साल के बाद बाहर निकले और सब DLN वाले से सबसे मिले तो हमारे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरे को पता ही नहीं चलता है मैं HIV पॉजिटिव हूँ या नहीं हूँ. HIV ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ HIV ಸೋಂಕು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಏನು ಬಂತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. हम बात करते हैं कि HIV पॉजिटिव को हमेशा दवाई लेनी पड़ेगी, उसको एड्स की श्रेणी में भी हम कह देते हैं. वही चीज़ डायबिटिक जो होता है उसके लिए भी लागू होती है, उसको भी पूरी उम्र दवाई लेनी है. जब उसके साथ हमारा भेदभाव नहीं है तो HIV पॉजिटिव के साथ भेदभाव होना बिल्कुल सही नहीं. ભલે ઘરે ના બતાવી શકતા હોય પણ કોઈ ART સેન્ટર છે કે CCC કોમ્યુનિટી કેર સેન્ટર છે, એવી જગ્યા પર જઈને એ જગ્યા પર જઈ અને એ લોકો બતાવી શકે કે હું HIV पॉझिटिव्ह છું. HIV झाला म्हणून माणूस मरतो हे सगळं साफ तद्दन खोटं आहे असं माझ्या अनुभवावरून तुम्ही लक्षात घ्या, कारण मी आत्तापर्यंत 17 वर्ष झाली मेलेलो नाही आणि अजूनही मरणार नाही असं माझी खात्री आहे. जर मी जगतोय तर तुम्ही जगाल, त्यामुळं अजिबात घाबरू नका. है तो है, क्या करना है, वो आपको थोड़ी कुछ मांगता है, आप उसको छोड़ दो ना, आगे का कैसा अच्छा होना है वो सोचो. फैसिलिटी बहुत रखा हुआ है आपके लिए. हमारा ऑफिस वाले तो कहते हैं कि झांसी की रानी, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, किसी से नहीं डरते हैं और सर उठा के जीते हैं, सर छुपा के नहीं जीते हैं.